السلام علیکم، ٹی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں طیبہ فراز۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حملہ آور کی جانب سے 2 فروری کو مسجد کی ریکی کا انکشاف، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے خودکش بمبار کے مسجد تک پہنچنے کے راستوں کا سراغ مل گیا۔ یاسر نامی دہشت گرد پشاور کا رہائشی تھا، 1.5 سال قبل گھر سے غائب ہوا تھا۔ کبھی کبھار گھر والوں سے فون پر بات کرتا تھا۔ خودکش جیکٹ پہن کر نوشہرہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ کچھ دیر قریبی ہوٹل میں بیٹھنے کے بعد حملہ آور کھنہ روڈ سے پیدل چل کر مسجد تک پہنچا۔ گیٹ پر 2 اور ہال پہ 6 گولیاں چلائیں۔ فائرنگ سے گارڈ کو زخمی کرنے کے بعد خود کو اڑا لیا۔ امن دشمنوں کے خلاف شکنجہ مزید تنگ کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ترلائی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور اور نوشہرہ سے 4 سہولت کار پکڑے گئے۔ تمام ذمہ داروں کو رات 3 بجے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پلاننگ اور ٹریننگ داعش نے افغانستان کے اندر کی ساری فنڈنگ بھارت کر رہا ہے، وہی ان کو ٹارگٹس دیتا ہے۔ کہ ایک چیز کی پلاننگ پیچھے سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں اور فرنٹ پہ انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے اور بیک اینڈ پہ بیٹھ کے وہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا خاموش رہ لے، نہ بولے آج، میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک دن دنیا کا ہر ملک یہ بولے گا کہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے، بیکاز اس جنگ نے ہم تو لڑ رہے ہیں، اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں بھارت کر رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد خودکش حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، جبکہ شہداء کی تعداد 33 ہو گئی۔ عباس مہدی نجی یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کا طالب علم تھا۔ پمپ سے اب تک 29 شہداء کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ خودکش دھماکے کے 11 شہداء کی نماز جنازہ امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ کے باہر ادا۔ شہید 3 افراد کی نماز جنازہ G9 امام بارگاہ اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ IIT اسلام آباد سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور روس کے سفیر البرٹ پی غاریف نے الگ الگ ملاقات کی۔ روس اور ایرانی سفیر نے اسلام آباد میں دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ علاوہ ازیں آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کر کے آذربائیجان کے صدر حکومت اور عوام کی جانب سے دھماکے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ بچوں کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونائیٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چائلڈز ایمرجنسی فنڈ نے اسلام آباد کی مسجد پر حملے کی مذمت کی۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ یونیسیف نے مسجد میں شہید افراد کے لواحقین اور کمیونٹی سے اظہار تعزیت کیا۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ کوئی بچہ ہدف نہیں بنایا جانا چاہیے، بچوں کو ہر صورت میں تشدد سے تحفظ دینا جانا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ دہشت گردوں کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے، خارج کا تعاقب کر کے انہیں ختم کریں گے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، ترلائی دھماکے کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ملک میں فرقہ واریت اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا حوصلہ اور عزم بلند ہے، دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کے گرد بہت حد تک گھیرا تنگ کر دیا گیا، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ دہشت گردی کا تحفہ مغرب سے ملا، ان کی جنگوں میں شامل ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ رہا۔ 40 سال سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، کوئی ملک اتنا لمبا عرصہ دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑا۔ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث لوگ مسنگ پرسن کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نئی کمیٹی ان معاملات کو دیکھے گی۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کو سزا کے خلاف جلد اپیل کا حق مل جائے گا۔ دہشت گرد حملے پاکستان کے امن اور معاشی استحکام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی اور BLA خطے میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا،
سرحد پار محفوظ ٹھکانوں سے حملے منظم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدہ تاریخی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ دفاعی معاہدے کے بعد اقتصادی تعاون بھی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ مزید کہا، غزہ میں مستقل جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ سعودی حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ خواجہ آصف ایونٹ کے مختلف سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ سرکاری وفود اور انٹرنیشنل کمپنیاں بھی شرکت کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ خواجہ آصف ایونٹ کے مختلف سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ سرکاری وفود اور انٹرنیشنل کمپنیاں بھی شریک ہوں گی۔ ادھر کراچی کے علاقے کرنگی ڈیٹ نمبر مٹکے والی پلیا کے قریب شہریوں کے مبینہ تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 2 ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے۔ لوگوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک اور ایک موقع سے فرار ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹیل مل چورنگی کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ پتنگیں اڑاؤ، پیچے لڑاؤ، جشن مناؤ۔ لاہور میں بسنت فیسٹیول کا آج تیسرا اور آخری روز۔ رات گئے آسمان پر رنگ برنگی پتنگوں کی بھرمار رہی۔ آج پتنگوں کے شائقین پھر گڈی اڑا کر آسمان کو رنگین بنانے میں مصروف۔ ہر طرف بوکاٹا کا شور، خواتین بھی پیش پیش۔ دوسرے شہروں اور بیرون ملک سے آئے لوگوں کا بھی خوب ہلا گلا۔ بچے ہوں یا بڑے، سب پتنگیں اڑانے میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گڈی لاہور دی اڈی شیئر کر دیا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان کا گانا یہاں پہ ڈائریکٹ ہو رہا تھا تو آواز ہے، اور بسنت کے لیے میں یہی کہوں گا کہ غلط ڈور استعمال نہ کریں۔ پنجاب گورنمنٹ نے بہت بڑا انتظام کیا ہے اور بہت کوششیں کر رہی ہیں کہ لاہور میں کوئی لوگ جو ہیں جو بائکس پہ ہوتے ہیں یا کہیں ہوتے ہیں ان کو ڈور نہ لگے، تو بڑا اچھا اقدام ہے ان کا۔ لیکن بسنت جو ہے وہ بسنت ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا، مجھے پتنگ نہیں، مجھے گڈی اڑانے کا شوق ہے، میں گڈی اڑاتا ہوں۔ ٹی وی ٹوڈے کے اوپر پہلی بار ایگری ٹوڈے کے نام سے زراعت سے متعلقہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں بلایا کریں گے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو، ہم بلائیں گے ریسرچرز کو، ایگریکلچر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان لوگوں کو ہم بلایا کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر سے ان لوگوں کو جو تحقیق کر کے نئے سے نئے بیج یہاں بھی تیار کر رہے ہیں اور باہر سے بھی امپورٹ کر، ہم بلایا کریں گے فرٹیلائزر کمپنی والوں کو، ہم بلایا کریں گے پیسٹیسائڈ کمپنی والوں کو۔ ہر بدلتے موسم کے ساتھ فصلات کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے، ہمیں زراعت سے متعلق ایگری ٹوڈے کرنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام ایگری ٹوڈے اتوار رات 8:03 پر اونلی آن ٹی وی ٹوڈے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
टुडे खबर सबसे पहले। चाहिए था क्योंकि हमें उसमें ड्रेसेस और कपड़े पहनने का एक मौका मिलता है और मुझे तो बचपन से ही गुड्डी उड़ाना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है सब जितने भी हमारे जेंट्स हैं और जितने भी गाइज लड़के हैं बॉयज़ हैं उन सबको खुश होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा एक इवेंट है और आई एम लकी कि हम लोग इस इवेंट को दोबारा से देख रहे हैं। जिस कौम ने जहाज छोड़ा वो जलील हो गई। हाईवेज एंड मोटरवेज यकीनन अवाम की हैं, लिहाजा इन पर सफर के दौरान अतराफ में मौजूद दरख्त और माहौलियात की हिफाजत और उनको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी अवाम की है। लिहाजा जिम्मेदार शहरी होने के नाते हाईवेज और मोटरवेज पर दौरान सफर और किसी भी रेस्ट पॉइंट पर रुकने के दौरान कचरा फेंकने और दरख्तों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें और उनकी हिफाजत करें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की जानिब से ये पैगाम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करते हुए पेश किया गया। दिस मैसेज ब्रॉट यू बाय टीवी टुडे। आने वाले दिनों में बसंत के लिए भी लोगों ने काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी इजाज़त मिल रही है। क्या कहना चाहेंगी? आपने तो अपनी एज में देखी है बसंत या नहीं देखी? हाँ, हम कश्मीर में थे तो तब हम देखते थे, बट यहाँ पे नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा फैशन से रिलेटेड चीज़ों का पता होता है। तो मे बी आई थिंक होनी चाहिए क्योंकि लोगों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आई थिंक होनी चाहिए। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग सुट सुट डोरी ते नचे मेरा दिल चढ़दी जावे उच्चा मेरा नाल लेके हवा नाल लब ले सी अपना मिल। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपना कुछ 3 बार मौत देखे। टाइम ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। फिर उन्होंने साडियां वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान। दिस मैसेज ब्रॉट यू बाय टीवी टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी अपनी सिद्रा नूर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रही है आपकी, कैसी जा रही हैं तैयारियां बसंत की? लोरियो कैसे जोशो खरोश है पंजाबियों? मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मैं लाहौर से भी हूँ और अंदरून से भी हूँ, और अंदरून के मजे तो फिर यही थे। मैं बड़ा मिस करती थी कि यार बसंत का जो त्योहार होता था, हम बचपन में अपने चचाओं के साथ छत पे चढ़ जाना और छत पे जोश खरोश और वो म्यूजिक और वो बो काटा की आवाजें, और बहुत मजा आया करता था बसंत का। तो बड़े सालों के बाद हमें देखना, ये बसंत देखना नसीब हो रहा है, और बिकॉज ऑफ मरियम नवाज साहिबा को हम शुक्रिया, उनकी वजह से ये क्योंकि ये हो रहा है तो उन्होंने इजाज़त दी, तो सबसे पहले तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। वो बड़े थैंकफुल हैं कि उन्होंने इस बात पे गौर किया और बसंत के त्यौहार को फिर से बहाल किया। लेकिन उन्होंने तो इजाज़त दे दी है और 3 दिन की छुट्टियां भी हैं, 1 दिन की नहीं 3 दिन की छुट्टियां, 3 दिन आप मनाएंगे बसंत का त्यौहार। लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा, धाती डोर और शीशे वाली डोर, इन चीज़ों से परहेज कीजिएगा। अपनी जान का भी ख्याल रखें और साथ में अपने लोगों की जान का भी ख्याल रखें। खुशी खुशी बसंत मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से जश्न बहारा और जश्न बसंत की बहारा। और गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा ते गजरेले बननगे, खीरा बननगियां ते मिठे ते
पकवान ते खाने ते बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो मेरी तरफ से आपको बसंत की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जिसने हिदायत की तरफ बुलाया उससे इतना ही अजर मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को। ऐसी नजरों से डाले तनावा कोई रब्बा दसे किथे जावा प्यारे वाली हवा पुरजोर लगा पेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा के दिल हुआ वो काटा। बहुत बहुत खुशियाँ जी मरियम नवाज साहिबा की वजह से जो लोग इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह पाक मरियम नवाज साहिबा को लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आप हमारे पंजाब के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे तमाम फनकारों के लिए खुशियाँ बांटती रहें। मैं सोमिया खान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। कोई भी मुसलमान इबादतगाह पर हमला नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत की। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाली किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक कराने का आज आखिरी रोज। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि बायोमेट्रिक न कराने वाले आज़मीन इस बरस हज नहीं कर सकेंगे। मोबाइल ऐप सऊदी वीज़ा बायो के जरिए घर बैठे बायोमेट्रिक कराई जा सकती है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए ताशीर सेंटर्स भी आज शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक रश से बचने के लिए सऊदी वीज़ा बायो ऐप से ही फिंगरप्रिंट्स मुकम्मल करें। बायोमेट्रिक कराए बगैर पासपोर्ट पर हज वीज़ा नहीं लगेगा। 80 बरस से जायद उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तनसा करार दिया गया है। सऊदी वजारत हज ने ज़ईफ हजाज को इस्तनसा दिया। नवाज शरीफ की अंदरूनी लाहौर आमद, दोस्तों के साथ बसंत बनाई। नवाज शरीफ ने अंदरूनी शहर में 4 घंटे तक क़याम किया। शेख रुहेल असगर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द भी मौजूद था। मेहमानों की हरीसा, मटन चन्ने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव से तवाज़े की गई। आपको अपडेट करें और बताएं कि नवाज शरीफ के अंदरून लाहौर आमद, दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में 4 घंटे तक क़याम किया। शेख रुहेल असगर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द भी मौजूद था। मेहमानों को हरीसा, मटन चन्ने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव से तवाज़ो की गई। अमरीकी सफीर नटली बेकर भी बसंत मनाने अंदरून दिल्ली गेट पहुंच गई। नटली बेकर और साथ आए वफ्द ने पतंग उड़ाई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और अस्मा बुखारी ने अमरीकी वफ्द को बसंत फेस्टिवल की तकरीबात पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी वफ्द ने बसंत के इनाकात की सताइश की। आपको अपडेट करें और बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और अस्मा बुखारी ने अमरीकी वफ्द को बसंत फेस्टिवल की तकरीबात पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी वफ्द ने बसंत के इनाकात की सताइश की। उधर बलोचिस्तान के 19 अजलाह में आज हल्की बारिश, जबकि चमन, बशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। पीटीए में बारिश और बर्फबारी के बायस बालाई इलाके नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। पीटीएम ने तमाम ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। का नाम है आई बसंत और ये गाना जनाब लॉन्च हो चुका है। आप लोग यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर एक जगह पे जाके गाना देख सकते हैं। और इस गाने का जो नाम है आई बसंत, और मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के भी सुना देता हूँ।
तेरे नां दी पतंग उड़ावा, तेरे नाल बसंत मनावा, ओ पाके सतरंगी जोड़ा, ओ नच ढोल उते थोड़ा, ओ पाके सतरंगी जोड़ा, नच ढोल उते थोड़ा, घुमे गुड्डे ते गुड्डा वजे तुनके ते तुनका, चली मस्ती दी तेज हवा, आई बसंत, आई बसंत, आई बसंत बहार, सारे रल गए ने यार, पाओ पंगड़ ते पंगड़ा है पंजाबी त्योहार। और सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा के लिए स्पेशली मैंने इस गाने में एक लाइन कही है जो बहुत वायरल हो रही है, मैं आपको भी सुनाता हूँ वो लाइन क्या है। ओ मरियम जी सजा दिता अज सारा लोर, रंग बिरंगी गुडिया नाले बोकाटा दा शोर, ओ जियो मरियम नवाज लोर लोरे, ओ वोटी वांगू सज गया अज मेरा लोर, रंग बिरंगी गुडिया नाले बोकाटा दा शोर, नैना दे पेचे अज लड़ लैन दे, टोलियां दे नाल मैनू नच लैन दे, साडा गुड्डा पिंक नीला, ओ लोकी बनावन रीला। तो थैंक यू सो मच। बसंत मनाएं और उस बसंत में हमारा गाना सुने, आई बसंत, और खुल के नाचे गाएं, एंजॉय करें। और लाहौर का त्यौहार पता चलना चाहिए पूरी दुनिया को कि लाहौर में त्यौहार हुआ, बसंत मनाई गई है। थैंक यू। जो शख्स लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी सबके लिए तकलीफ का बायस बनती है। इंतहाई दाएं लेन मुसलसल ड्राइविंग के लिए नहीं, सिर्फ ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंडिकेटर देकर दाएं लेन से अगली गाड़ी को ओवरटेक करें और फिर इंडिकेटर देकर अपनी लेन में वापस आ जाएं। बड़ी गाड़ियां और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियां इंतहाई बाएं लेन में चलें ताकि सबको रास्ता मिले, सबका सफर आसान रहे। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। This message brought to you by TV Today. जी, जैसा कि आपको पता है कि बसंत होने जा रही है कि 2007 या 6 में लास्ट बसंत हुई थी, और अब शायद तकरीबन 17-18-19 साल हो गए हैं इस बात को, और 17-18-19 साल में हम भी बदल गए हैं। लेकिन हम पहले बहुत जोश व खरोश से जो है हम पूरे फ्रेंड्स जो हैं बसंत मनाते थे अंदरून में, और अंदरून की बसंत का सबको पता, आजकल तो छतें बिक रही हैं वहाँ पे, रेंट आउट हो रही हैं। तो अब वो ज़ाहिर बात है वो जोश नहीं रहा, क्योंकि हर इंसान की जो एक कहते हैं ना कि प्रेफरेंसेस होती हैं ज़िंदगी में, वो बदल जाती हैं, वो नीड्स बदल जाती हैं। लेकिन आई होप जो कि 16-17 साल बाद ये जो इवेंट हो रहा है, ये एक ज़बरदस्त इवेंट होगा, और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट का जो है मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये बसंत को रिकन्सिडर किया, और 3 दिन दिए हैं माशाल्लाह से। और 3 दिन पहले लोग 1 दिन बसंत मनाते थे, अब 3 दिन बसंत मनाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि बाद में नहीं उड़ा सकते या पहले नहीं उड़ा सकते। इन 3 दिनों में आप जी भर के जो पतंग है वो उड़ा सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, खाने खा सकते हैं। और मेरा ये मशवरा है, धाती तो डोर जो होती है, ये जो आप तार लगाते हैं या आप केमिकल यूज़ करते हैं, ये ना कीजिए खुदारा, और इस बसंत को सेफ बनाइए। थैंक यू सो मच। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग, सुट सुट डोरी ते नचे मेरा दिल, चढ़ती जावे उच्चा मेरा नाल लेके, हवा नाल लब ले अपना मिल। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा फेस्टिवल वापस आ रहा है वो है बसंत। पूरा पाकिस्तान बहुत एक्साइटेड है बसंत फेस्टिवल को लेके, मैं खुद भी, क्योंकि हमने लास्ट मेरे ख्याल से 2003-4 में सेलिब्रेट की थी। अभी फाइनली हम लोग फिर दोबारा से उस डे को एंजॉय करेंगे। और मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि जिस तरह जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं आप उनको फॉलो करें और उस तरह से सेलिब्रेट करें। थैंक यू गाइस। जन्नत मौत के कदमों तले है। एक ऐसी कॉल जो आपकी जिंदगी की सबसे महंगी कॉल साबित हो सकती है।
दौरान ड्राइविंग गाड़ी चला वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन टीम कराची से बराह रास्ता दुबई जोहान्सबर्ग पहुंची, जबकि साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान विमेन टीम के दौरा साउथ अफ्रीका में 3 वनडे मैचेस भी शामिल है। आपको अपडेट करें और खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन टीम कराची से बराह रास्ता दुबई जोहान्सबर्ग पहुंची, जबकि साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान विमेन टीम के दौरा साउथ अफ्रीका में 3 वनडे मैचेस शामिल हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत का क्रेडिट फहीम अशरफ को जाता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी के बाद गुफ्तगू करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि इवेंट के पहले मैच में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग के दौरान लगातार विकेटें गिरने की वजह से मुश्किलात पेश आईं। फहीम अशरफ ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। अगले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।